حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ وزیر کے حزب کمانڈر ریاض نائکو کی ہلاکت کے بعد فورسز نے جنوبی کشمیر میں ملیٹنسی مخالف آپریشنز میں تیزی لائی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں فوج نے کارروائی کرتے ہوئے ہتھیار اور گولہ بارود ضبط کیا ہے۔ فوج نے یہ کارروائی لائن آف کنٹرول کے نزدیک کرنا علاقے کے امروہی میں انجام دی ہے۔ فوج نے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود ضبط کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ شمسی پورہ شوپیاں کے رہنے والے نوجوان شیخ حسین کے اہل خانہ اس سے گھر واپس ہونے کی اپیل کر رہے ہیں۔ شیخ حسین مبینہ طور پر چند دن پہلے ملیٹنٹ صف میں شامل ہوا ہے۔ شیخ حسین کے والدین نے درد مندانہ اپیل کرتے ہوئے ملیٹنٹوں سے ان کے بیٹے کو واپس گھر بھیجنے کے لیے کہا۔ والدہ نے کہا کہ شیخ حسین فزیکلی فٹ نہیں ہیں اور اسے گھر واپس بھیجا جائے۔ شیخ حسین مول عبدالحمید صوفی مہربانی کر مہربانی یم تنظیمن یہ سوزتون واپس برائے خدا امس زنگہ تکلیف زنگہ فریکچر بیس ماجہ تہ آپریشن آمت سو ہارٹ پیشنٹ سو در بستر پیمت مہربانی کر سوزتون واپس اپیل کران یہ تنظیمن سوزتون مے واپس امس زنگہ دود مہربانی کر سوزتون مے واپس انر زبانی مرد موج سوزتون مے واپس۔ پونچھ کے مہندر سیکٹر میں پاکستان کی بلاشتعال گولہ باری میں ایک عام شہری زخمی ہوا ہے۔ زخمی کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال مہندر منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ زخمی کی شناخت 25 سالہ محمد یاسر کے طور پر کی گئی ہے۔ اس گولہ باری میں یاسر کے مکان کو شدید نقصان پہنچا اور کئی مویشی بھی مارے گئے۔ یاسر نے بتایا کہ آج صبح 3 بجے پاکستانی فوج کی جانب سے کی گئی گولہ باری میں اس کے مکان کی چھت منہدم ہو گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ یاسر نے اس کے گاؤں میں بنکر بنانے کی اپیل کی۔ مکان پہ اگر ایک شال گرا اور شال جب مکان پہ گرا تو دروازے سے اندر سے پلنڈر آ کر سویا ہوا تھا تو آگے میری ٹانگ میں لگا، تو تب جب میں جاگا یعنی خون ہو گئے تھے میری ٹانگ میں، تو میرے گھر والوں نے مجھے اٹھایا، مجھے ہوش نہیں تھا یعنی، تو میں اپنی تمام ایڈمنسٹریشن سے یعنی اور گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک میری بات نہیں ہے، بارڈر بیلٹ کے تمام لوگوں کی بات ہے۔ ہمارے ادھر بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، ان کا مال مویشی، ان کے بچے، ان کے یعنی آج کل دن میں تو کرونا وائرس ہے، باہر نہیں جانے دیتی گورنمنٹ، اور رات کو ہمیں شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مارننگ 3 بجے کے قریب شیڈنگ ہوئی ہے، ہیوی شیڈنگ ہوئی صبح دوبارہ، تو اس میں جو یہ گولد ایریا ہمارا اوپر، اس میں ایک لڑکا یاسر سن محمد رشید 25 سال، اس کو سپلنٹر انجری جو ہیں وہ آئی ہیں بائیں تھائی پر۔ پاکستان نے حالیہ دنوں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان اب امریکی ساختہ ٹوو میزائل کا استعمال کر رہا ہے اور پونچھ میں LOC پر شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فوجی عہدیداروں نے نیوز 18 اردو سے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی 105 کرونا پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں۔ ان میں کشمیر سے 90 اور جموں سے 15 کیس ہیں۔ متاثرین میں بیشتر وہ لوگ ہیں جو باہر سے جموں کشمیر آئے ہیں اور سبھی کوارنٹین مراکز میں رہے ہیں۔ آج وائرس سے متاثر ہونے والوں میں 17 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ CD اسپتال کی ایک نرس کا نتیجہ بھی مثبت پایا گیا۔ ایک سینئر IAS افسر بھی اس وبا سے متاثر ہو گیا ہے، جس کے بعد اعلیٰ بیوروکریٹس اور طبی حکام کو کوارنٹین میں بھیج دیا گیا۔ کورونا سے متاثر IAS افسر جمعے کو سری نگر سے جموں واپس ہوئے تھے۔ اسی بیچ ایک اور IAS افسر کے ڈرائیور کا کورونا نتیجہ بھی پازیٹیو آیا ہے۔ وادی کشمیر میں 2 SSG کمانڈوز بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ حکام نے میڈیا کو بتایا کہ 8 SSG کمانڈوز کے نمونے 27 مئی کو حاصل کیے گئے تھے اور 29 مئی کو ان کے نتائج آئے۔ 8 میں سے 2 کمانڈوز کی کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت پایا گیا۔ ایک کمانڈو کا تعلق سری نگر ضلع سے جبکہ دوسرے کا بانڈی پورہ ضلع سے ہے۔ ڈائریکٹر SSG SD سنگھ جموال نے اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ دونوں متاثرین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کے متعلقہ علاقوں کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔
JLNM अस्पताल से आज 13 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इन मरीजों के 2 टेस्ट मनफी आने के बाद उन्हें अस्पताल से जाने दिया गया। इन तमाम मरीजों में कोरोना की कोई अलामात नहीं थी। वाज़ेह है कि JLNM अस्पताल रनवारी श्रीनगर से अभी तक 140 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। बारामूला में कोविड पॉजिटिव केसेस में इजाफे के बाद इंतजामिया ने मुतल्लका इलाकों में पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया है। लोगों की नक्ल हरकत को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर्स के ज़रिए लोगों को घरों में रहने को और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने की अपील की जा रही है। वत्रगाम रफियाबाद में भी तहदीदात आयद की गई हैं। यहाँ पर कल 10 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इंतजामिया ने कोरोना से मुतासर अफराद के राब्ते में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया है और अब सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इलाके के लोगों से सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया जा रहा है। मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट होटर गमस मज लूकन वन कि ज़्यादातर ज़्यादा बी तो घर मज ताकि रात वो तुज ओतर 2 केस रात चूँकि 14 केस ये बदरगामस मज नई आए अमूज तमाम रेस्ट्रिक्शंस रेड जोन के हॉटस्पॉट बस वन कि लूकन तमाम चीज तो घर मज कोई जरूरत तो एक जाए पर भी जाए गई। इस बीच जिला कुलगाम में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिले में आज भी मुतादिद नए मुस्बत केस सामने आए हैं। इस तरह जिले में अब तक मुस्बत केसेस की तादाद 300 के करीब पहुंच गई है। इस दौरान जिले में मुसलसल लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया और पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से अमलाने में जुट गई है। जिले के रेड जोन इलाकों में मुसलसल बंदिशें आयद हैं। इससे मामलात ज़िंदगी मुतासर हैं। इंतजामिया कोविड से निपटने के लिए तैयार है और हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बांडीपुरा में हालिया कुछ अयाम में कोरोना वायरस के मजीद मुस्बत मामले सामने आने के बाद पतुशे समेत कुछ दीगर इलाकों को सील किया गया। इन इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद की गई हैं। दर्जनों अफराद को क्वारंटीन मराकज़ मुंतकिल किया गया है। कहा जा रहा है कि मुस्बत मामले अगरचे दूसरे अजला में जांच के दौरान सामने आए हैं, ताहम ईद के रोज़ घर आने की वजह से उनके अफराद खाना और उनके राब्ते में आने वाले लोगों को क्वारंटीन मराकज़ मुंतकिल किया गया है। उधर महकमा सेहत की जानिब से बांडीपुरा में रैंडम सैम्पलिंग शुरू करने के बाद मजमूई तौर पर ज़िले में सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। ज़िले को रेड जोन से निकाल कर अब ऑरेंज जोन में रखा गया है। आज 1.5 महीना हो गया सर हमें यहाँ टेस्ट करते हुए। तो पहले नॉर्थ में बांडीपुरा ने स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से फिर जब हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर मसरत साहब आए तो इन्होंने ये प्रोग्राम थोड़ा चेंज किया। उन्होंने रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो गया। हम रेड जोनों में गए, वहाँ सैम्पलिंग की, क्वारंटाइन सेंटरों में सैम्पलिंग की। अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की खिदमत के लिए हम जुट गए और आज तक हमने करीबन 2400 से ऊपर के सैंपल लिए हैं। और माशाल्लाह आज की सिचुएशन ये है कि बांडीपुरा आज बिल्कुल फ्री कंट्रोल में है और होप द बेस्ट करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये नहीं कह सकते कि कब कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बांडीपुरा जितना जल्द हो सके हमें ग्रीन जोन में आए। राजौरी की थाना मंडी में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन में सख्ती की गई है। इस टाउन को पूरी तरह सील कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को भी नकल हरकत की इजाज़त नहीं दी गई। SDPO थाना मंडी ने आसपास के इलाकों के लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी। वाज़ेह कि थाना मंडी में कल 3 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें से 2 अफराद को एक क्वारंटीन सेंटर से घर जाने दिया गया था। DM और ADM इस मामले की जाँच कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आए हैं नज़र में थाना मंडी में, और उसके बाद पिछले कल में कुछ 2-3 और केसेस आ गए हैं। तो उसी को देखते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे कि रीसैम्पलिंग करनी ज़रूरी है। कुछ एक उनके जो घर वाले लोग हैं जो है उनको जो है उनका भी सैंपल लेना ज़रूरी है। इसी वजह से हमने जो है कल DC साहब के अहकामात के ऊपर जो है वो सील किया है। उधर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी आज नए 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। यूटी में अब मजमूई केसेस 26 हो गए हैं। 19 केस करगिल और सातलह ज़िले से हैं।
इसी दौरान 4 कोरोना मरीजों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नए मामलों में दिल्ली और जम्मू से आने वाले अफराद शामिल हैं। लॉकडाउन में 8 जून से मजीद नरमी देने के फैसले से ताजिरों में खुशी देखी जा रही है। जम्मू खित्ते के मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों से जुड़े ताजिरों ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। इन ताजिरों ने कहा कि सरकारी गाइडलाइंस की पाबंदी की जाएगी। ये चीज़ जो आ चुकी है, इससे निपटने के लिए हम लोगों को खुद इसके साथ लड़ना होगा। बंद करके तो कितनी देर, इसका तो कोई हल नहीं होगा। बंद करने से बिजनेस भी डाउन हो जाएंगे, हम लोगों की इकॉनमी भी हिंदुस्तान की डाउन हो जाएगी। हमें पैसा भी चाहिए, काम भी करना है, और इसके साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही काम। मेडिसिन वगैरह नहीं आती, इसकी तरह जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके नॉर्म्स जो है, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करेगी, उसको करना ज़रूरी है और ये सबके लिए है। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है 8 तारीख से खोलने का, ये होना चाहिए था। इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ये हमारी हिफाजत है, हमारी आवाम की हिफाजत है, पब्लिक की हिफाजत के लिए हम जो भी नियम होंगे, जो भी उनके फैसले होंगे सरकार के, हम आज तक भी उनको पालन करते आए हैं, उनका वो पूरा साथ देते आए हैं और आइंदा भी हम साथ देंगे। हमारी आवाम जो है बिल्कुल पिछले 4 महीने से जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, हमने उसका साथ दिया है। बाय स्टेप जो है ये लॉकडाउन को जो है इन्होंने शुरू किया है। जैसे 3 दिन दुकानें खुली, उसके बाद अब ये टाइमिंग इन्होंने 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शुरू की है। अब ये लॉकडाउन जो है ये ओपन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज हम लोगों को परमिशन दी है लॉकडाउन 5 के चलते हुए कि सारी जो प्रशासन जो है दुकानें जो हैं सारी खुलेंगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, जो गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी हुई है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस कठिन वक्त में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बुराक लाए हैं 100%। 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रियासी ज़िले का इकनी गांव बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ मुनासिब सड़क राब्ता नहीं है और तिब्बी सहूलत भी मैसर नहीं। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में यहाँ के लोगों की मुश्किलें मज़ीद बढ़ जाती हैं। हाल ही में इस गांव की एक खातून दर्द-ए-जह में मुब्तला हुई। इसे अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। मजबूरी में गांव के नौजवानों को चारपाई के ज़रिए उसे एम्बुलेंस की सहूलत के मकाम तक ले जाना पड़ा। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह नौजवान खातून को अपने कंधों पर ले जा रहे हैं। उन्होंने इस दुश्वार गुजार रास्ते पर तकरीबन 15 किलोमीटर की मसाफत तय की। इन नौजवानों की ये मेहनत काम आई और इस खातून ने जम्मू के एक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में चारपाई पर ही खातून और बच्चे को उसके घर तक पहुंचाया गया। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता कई बरसों से सड़क तामीर के मरहले में ही है। उन्होंने गाँव में तिब्बी मरकज़ कायम करने की भी इंतज़ामिया से अपील की है। हमारी ये जो जूथ है यहाँ का, इन्होंने ये खट का बंदोबस्त चारपाई का किया और रनसू तक इनको ले गए। वहाँ से 108 पे इन्होंने कॉल की और गाड़ी आ गई और आज डिलीवरी हुई है कल कोई 3 बजे की। आज ये यहाँ वापस आए हैं। फिर चारपाई पे हमें आना पड़ता है। सेंटर यहाँ पे हो जाए कि हमारी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी डिलीवरी के लिए उनको दूर दराज का जो है दूर सफ़र ना करना पड़े और उनको परेशानी ना हो। हम यही चाहेंगे कि इकनी में एक सब सेंटर भी हो और उसके साथ साथ जो हमारे ये प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी केयर का एक खास बंदोबस्त होना चाहिए। खाग में कायम पब्लिक हेल्थ सेंटर में अद्वियात की अदम दस्तियाबी पर लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। अस्पताल में दवाओं की अदम दस्तियाबी की वजह से एक हामिला खातून ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। उसके अहल खाना का कहना है कि दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला खातून को खाग PHC पहुंचाया गया। यहाँ एक मामूली इंजेक्शन की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आई। अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें रात के दौरान बडगाम मुंतकिल किया। वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। लोगों के मुताबिक उस वक्त उन्हें काफ़ी दिक्कतें पेश आई। इसके बाद इस खातून को बेरवा अस्पताल पहुँचाया गया। खाग के लोगों ने महकमे हेल्थ से अपील की कि अस्पताल में हर तरह की सहूलियात बहाम रखी जाए। टीम सह असल तमो कर खातिरदारी वारिया मगर लेकिन बेमू सोबन ना सिरिंज तोमुत अत अमिस पेशेंट सद खतर क्या अंदर ग्लूकोज अमिस पेशेंटस लागुन तथ इंजेक्शन जरूरत तमाम पे वारियान कर फोन तह नश बन सह बनो कुने जाए तो वारिया प्रॉब्लम गई तथ पे कर 2 बजे 3 बजे रात रेफर बडगोम यूता बोड़ हस्पताल यू टीम ती वगैरह मगर सिरिंज तथ सोद बना वक्त विज सुना टोटल बना कहें अम खतर गस क्या फैसलटी अत बन गोस दूर पे गन कह मुश्किल गरीब गरीब आवाम और महकमे PDD में काम कर रहे डेलीवेज मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर पामपुर में एहतजाज किया। वो मुतालबा कर रहे थे कि पहले उन्हें मुस्तकिल किया जाए और बाद में इंतज़ामिया नई असामियों को पुर करने का अमल शुरू करे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मुश्किल हालात में भी तंदही से अपने फ़राइज़ अंजाम देते आए हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान कई मुलाजमीन ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में वो लोगों की खिदमत अंजाम देने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। असामियों की भर्ती में अमला लाया जाएगा, हम उसके खिलाफ इसीलिए है कि जो हम डेलीवेजर पिछले 20 सालों से 25 सालों से 15 सालों से लगातार काम करते आ रहा है, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में कई डेलीवेजर अपाहिज भी हो गए, मर भी गए हुए हैं। इसीलिए हम हुकाम बाला से ये कहना चाहता हूँ, गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि इसको रिवोक किया जाए कि पहले हमारा मसला हल किया जाए। जिस तरह आज गवर्नमेंट ने क्लास 4 मुलाजमों की भर्ती की बात की है, हालांकि हम चाहते हैं कि कश्मीर में बेरोजगारी ख़त्म हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भाइयों का हक छीना जाए। जम्मू में जो भी TDL PDL मुलाजिम है उनकी बाज़ाब्ता सैलरी आ रही है, लिहाजा मैं आपकी वसादत से
उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो ये रुका पड़ा मसला है इनको पूरी तौर रेगुलर किया जाए। एक तरफ कुपवाड़ा में कोरोना वायरस के केसेस में हर रोज इजाफा हो रहा है, वहीं तेजी से मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के बिलगाम और जीडीसी क्वारंटीन सेंटरों में कोरोना वायरस के दर्जनों मरीज सेहतयाब हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। बैरून रियासत से आए लोगों के टेस्ट मनफी आ गए थे और वो अपने घरों को वापस लौट गए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की सताइश की। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटरों में बेहतर इंतजाम किए गए थे। यहाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जितना भी हमारा अमला है यहाँ डॉक्टरों का और यहाँ जो भी इंतजामी है सब, हम बिल्कुल यहाँ इन्होंने हमारी बहुत अच्छे तरीके से खिदमत की। कोई किसी किस्म की हम लोगों को यहाँ पर तकलीफ नहीं पड़ी। हम जैसे अपने घर में रहे ऐसे ही रहे और आज इंशाअल्लाह हमारा नेगेटिव टेस्ट आने पर हम लोग अपनी खुशी से अपने बाल बच्चों को अपनी फैमिली को लेके अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे क्वारंटाइन वेलकम सेंटर में है, हमको यहाँ पे बहुत अच्छे खिदमत किया है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखा है, हमको सैनिटाइज भी दिया है। डॉक्टर टीम सुबह भी आते थे शाम भी आते थे और हमें खाना भी अच्छा मिला है और सब कुछ ठीक मिला है। और आज हमारा रिपोर्ट आया है, हम 60 थे यहाँ पे, सबों का आज नेगेटिव आया है। इंशाल्लाह हम सब खुश है। वीडियो के जरिए आपसे ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमें अच्छी सहूलियत मैसर हुई और हमने अपना क्वारंटीन पीरियड यहाँ पे बहुत अच्छे से गुजारा। हमने जितना टाइम भी यहाँ पे गुजारा है बहुत ही सेफली गुजारा है और हमारी जो नीड है, डेली नीड्स है, ज़रूरियात थी वो भी पूरी होती थी। किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होने दी। जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी हमें बहुत ही अच्छे से मैसर होती थी। जितना भी टाइम गुजारा बहुत ही। टंगमर के छांदल में पानी की फराहमी और खेतों की आबपाशी के लिए पानी को अबूर करने की खातिर कलवर्ट, जिसको कश्मीरी में आबानूर कहते हैं, का इस्तेमाल आज भी जारी है। दहाइयों पुराना कलवर्ट के बदले हुकूमत और मुतल्लिका महकमा आज तक पुख्ता कलवर्ट तामीर करने में नाकाम रही है। पेश टंगमर से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। देवदार की लकड़ी का बनाया हुआ ये है एक कदीम कालवर्ट। इसको कश्मीरी में आबनोर कहते हैं। इसको किसी नाले का पानी अबूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कालवर्ट यानी आबनूर टंगमर के छांदलवानी गांव में मौजूद है। लोगों के मुताबिक इस नदी के ऊपर मौजूद ये कालवर्ट 40 से 50 साल पुराना है। कश्मीर में कदीम दौर से ही खेतों को आबपाशी, पानी की निकासी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर लकड़ी के कालवर्ट बनाए जाते हैं। बेशतर मकामात पर अब इन जगहों पर जदीद तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं। मुतल्लिका महकमों के जरिए पुख्ता यानी सीमेंट और लोहे के कालवर्ट नस्ब किए जाते हैं। ताहम छांदवलवानी गांव में इस तरक्की याफ्ता दौर में भी इसके बरक्स नजर आ रहा है। यहाँ इसी कालवर्ट के जरिए से पानी को अपने घरों और खेतों तक पहुँचाया जाता है। लोगों ने सरकार के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज तक यहाँ एक पुख्ता कालवर्ट लगाने के लिए उन्हें सिर्फ दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी है। ये जो पानी वाला हमारा ये उसको कश्मीरी में नोर कहता है, उर्दू में इसको पाइप कहता है। ये बहुत सारी मतलब इसमें बहुत खेत आ गए हैं। 2-4 गाँव के बीच में ये नदियाँ मिलजुल के काम करता है, लेकिन मगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। ये 1965 से हम मतलब ये गांव वालों ने 2-4 गाँव ने इसको मिल के जंगल से लाया। उस वक्त फैसिलिटी था हमारा। ये देवदार का लकड़ी है, उसको तकरीबन 1 महीना हो गया हमने लगा दिया खोदने में। ये गई तकरीबन 40-45 वरी नरिस तो लिहाजा कर यह प्रान मे मालिस नश बोजमुत मे फिक्र अमिच कह यह प्रान ओनमुत 40-45 वरी गम ज्यादा। यह नोर ओनमुत हल शरी कर जंगल वोलमुत तमाम दोहन देवदार पे गोरमुत यह हल शरी कर तो लोगमुत नोर लिहाजा कर तवज्जो गवर्नमेंटन टोटली कहें। बदरनकोल और दारहामा से बह रही नदी का ये पानी छांदल के इस कालवर्ट के जरिए वानीगाम, देवपुरा, दर्दपुरा, गनीबाबा और दीगर इलाकों को पहुंचता है। उस जमाने में इतना लंबा कालवर्ट बनाना भी अपने आप में एक बड़ा कारनामा ही रहा होगा। लोगों का कहना था कि आज तक हुक्काम ने यहाँ सिर्फ दौरे किए, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किया गया। लोगों का कहना है अगर ये लकड़ी का बना हुआ आबनूर टूट गया तो वो पानी से महरूम होंगे। ये जो पानी आता है बदरनकोल दारहोबा से
और उसके बीच में आता है इसका छांदल, छांदल का नेक्स्ट आता है वानीगाम, और उसका नेक्स्ट आता है दर्दपुरा और दीपुरा तक ये नदियाँ जाता है। अगर खुदा न खास्ता इस मतलब ये जो पाइप है उसका कोई डैमेज हो गया, इतना 4 गाँव का किसानों का जो भी मतलब धान वाला खेत है वो सारा मुतासर हो जाएगा। हमने गवर्नमेंट से कई बार रिक्वेस्ट किया है, जो ये नोर है कंक्रीट में ये दिया जाएगा, मगर आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 8 दान खरन जमीन आब अपर चवान तम गाम वारिया गाम वही गाम गंज बाबुन छांदिल, अगर ये नोर ददरिया पत फुट तो ये पे गया मुश्किल, आबी जमीन पे सोरे अति खुश गया गए वारिया लट गवर्नमेंटस नश, मगर ये आय नजर ते अफसर आए योर, मगर ये को दितुन टोटली तवज्जो का। हुकूमत और मुतल्लिका महकमे को चाहिए कि मुस्तकबिल में लोगों को किसी परेशानी से बचाने के लिए यहाँ एक पुख्ता कालबुट का इंतजाम किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए टंगमर से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस कठिन वक्त में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बुराक लाए हैं 100% प्योर कोलॉजी टैबलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बढ़ाती है आप channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बडगाम के कारीपुरा गांव के करीब चंद तेंदुए देखे जाने के बाद इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। डीसी व एसएसपी के दफ्तर इस इलाके के करीब ही हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िला इंतज़ामिया गफलत में है और इस मामले का नोटिस नहीं ले रही है। इसी दौरान महकमे वाइल्ड लाइफ के अहदेदारों ने इलाके में तेंदुओं की तलाश शुरू कर दी है। मकामी अफराद के मुताबिक इलाके में इससे पहले भी तेंदुओं को देखा गया है, जो लोगों खासकर बच्चों के लिए खतरा है। हेडक्वार्टर बडगाम में रहते हैं और हेडक्वार्टर बडगाम के डीसी रेजिडेंस के आसपास हम सुबह से गश्त कर रहे हैं। यहाँ पे लिपर्ड के एग्जिस्टेंस के बहुत सारे वाक़ात हो गए हैं और हमारे मोहल्ले में ये कंसिस्टेंटली शाम को नमाज के बाद आता है और हमने इंटिमिडेट किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। बट आप लेथार्जिक अप्रोच देखिए कि लोकल आवाम डीसी के रेजिडेंस के इर्द गिर्द गश्त कर रहे हैं और वो अंदर बैठ के पता नहीं कौन सी कॉफ़ी पी रहे हैं। पहले हमारे गांव में तेंदुआ आ गया है, तो उस वजह से हमारे पूरे गांव में दहशत पैदा हो गया है। ये कल शाम को भी आ गया है, तो एक हफ्ते से हम शाम को सुबह को हम पूरी दहशत में, हमारे बच्चे खतरे में, हम सारे खतरे में हैं। तो हमने तुरंत इसके जो डिपार्टमेंट है उनको इतला दिया और इनके बहुत शुक्रगुजार है, ये सारे आए। हर तरफ हमें शेर ही शेर नज़र आ रहे हैं। 6 बजे के बाद हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कल भी एक बहुत बड़ा शेर यहाँ कब्रिस्तान से गुजरा आया था और बस्ती में घुसा था। लोगों ने बहुत शोर मचाया। सर हमको करना है सर, हम करते हैं सर। हमने यहाँ भी 1-2 केज लगाए, अभी हम 2-3 केज और भी हम फिक्स करेंगे। यहाँ जो एक्चुअली ये नर्सरी है ये बहुत डेंस हो गई है। इसमें जो बर्फ़ से गिरे हैं वो पेड़ पौधे वो इसे उखड़ गए। इस तरह कांटों की झाड़ियाँ बहुत है, जिसे एहतमाल आता है जानवर को छुपने का। मार्केट में नाके के दौरान 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मकदार में नशीली अद्वियात जब्त की गई है। पटन पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर पटन पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए पलहालन में कई जुएबाजों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 12,720 रुपये के अलावा बैंक चेक और कई मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कल पुलिस स्टेशन पटन को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि पलहालन रायपुरा में कुछ गैम्बलर्स, कुछ आउटसाइडर्स और कुछ लोकल जो है वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। पुलिस पार्टी ने जैसे ये खबर मिली, एक टीम बनाई गई जिनने रश किया वहाँ पर। ये अब्दुल मजीद वानी के घर में गैम्बलिंग चल रही थी। गुजारिश होगी पटन की तमाम आवाम से कि एक तो ड्रग्स के मामले में जो है पुलिस बहुत सख्त है, इसको टोटली जो है टॉलरेट नहीं करेगी। अगर कोई भी उनको लगता है कि कहीं जो है वो हमारे जवानों को भड़का रहा है तो वो उसकी खबर जो है पुलिस को दें ताकि हम बर वक्त कार्रवाई कर सकें। ज़िला पुलवामा के वुखरुन और मुलहका देहात के मेवा बागात में नामालूम बीमारी फूट पड़ी है। इससे सेब के दरख्तों के पत्ते सूख रहे हैं। वुखरुन और उसके मुलहका देहात में क्रायूस पर मौजूद सेब के बागात में दरख्तों पर कई रोज से पत्तों को ये बीमारी लग गई है। इससे मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि क्रायूस के बागात में सूखे के सबब दरख्तों पर बीमारी नुमदार हुई। इससे अब सेब की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक हो गया है। शोपियां के लोगों ने मुगल रोड को खोलने की एलजी इंतजामिया से अपील की है। लोगों ने कहा कि चेरी एक्सपोर्ट के लिए तैयार है और जखीरा किए गए सेब की भी रास्ता बंद होने रहने से मुंतकिल नहीं की जा रही है। एनसी जिला सदर शब्बीर अहमद ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि वो सेब को मुंतकिल नहीं कर सके और अब चेरी तैयार है और अगर इसे ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। समाजी कारकुन मंजूर मागरे ने भी मुगल रोड खोलने की मांग की। गुजारिश करूँगी इस मुगल रोड को कम से फ्रूट और चेरी इसके लिए 24 घंटे खुला रखे। सेब स्टोर में फंसा है, 10-10 दिन रास्ता बंद होता है। यहाँ से अब चेरी का फ्रूट का भी हम शुरू हो रहा है, आगे भी और ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से भी और खासकर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर से कम से कम फ्रूट के लिए इसको अगर इनको ये है कि कोविड है या कोई खतरा है, कम से कम फ्रूट गाड़ियों को 24 घंटे जाने आने की इजाज़त दी जाए। ये मुगल रोड है, मतलब ये तो एक मुतबादिल रास्ता है नेशनल हाईवे का, तो इसमें बर्फ़ हटाई गई है और 1-2 किलोमीटर अभी बाकी है। न जाने कि वो क्यों नहीं हटाया गया है। हम गवर्नर, इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। हमारे यहाँ फ्रूट है उसको बहुत टाइम लगता है और नेशनल हाईवे में ये तो बिल्कुल मतलब नज़दीक है।
अगर इनकी खातिर ये खोला जाए तो इसमें फ्रूट ग्रोवर्स का और किसानों का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जिला पुलवामा के दोरी गांव का सड़क राब्ता पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया। इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मोरन से दूरी तक की राब्ता सड़क पर कई बरसों से मैकडम नहीं बिछाया गया है। मामूली बारिश के दौरान इस पर चलना दुश्वार बन जाता है। लोगों ने मुताल्लिका महकमे से मुतालबा किया कि सड़क पर रवां बरस मैकडम बिछाने का काम अंजाम दिया जाए। सरकार से ये अपील है कि हमारी जो रोड है मोरन से जो दूरी की तरफ जा रहा रोड जो पुलवामा से मिलता है सर, इसकी मैकडम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एक केस पड़ा है जो अप्रूवल के लिए हमने दिया सर। हम हमारे नंबरदार साहब भी गए, मैं भी गया था, सारे हम गए थे, लॉकडाउन से पहले की बात है सर। एडवाइजर साहब को भी नॉलेज में लाया हमने, गवर्नर साहब, ताकि गवर्नर साहब ऑफिस के भी इसकी कापी है सर, मगर अभी तक इसकी मैकडम नहीं हुई है। अब हमारी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द मैकडम की जाएगी। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरंग नामग्याल ने 5 रोज़ा संस्कार दौरा मुकम्मल किया। इस दौरान नामग्याल ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। चीफ इंजीनियर विजय, ब्रिगेडियर अमित सोहेल, SDM संस्कार और तमाम मुतल्लिक़ अफसर रुकन पार्लियामेंट के हमरा थे। इस दौरान नामग्याल ने नेमू से पदम दारचा के बीच अंजाम दिए जा रहे कामों का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर ने यकीन दिलाया कि तमाम कामों को वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। लद्दाख के लोगों ने साबिक़ सफारतकार पी तोबदुन के दलाई लामा से मुतल्लिक़ हालिया बयान की मज़म्मत की है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, लद्दाख वुमेन एसोसिएशन, यूथ विंग और दीगर तंजीमों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि टीवी मबाहिसे के दौरान दलाई लामा के ताल्लुक़ से पी तोबदुन के बयान की मज़म्मत की। पुंछ के LOC पर वाक़े दिगवार इलाके में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। तेज़ हवा से 2 मकानों की छत उड़ गई, काफ़ी दूर जा गिरी। बारिश से मकान में रखा सामान भी तबाह हो गया। मुतासिरीन ने इंतज़ामिया से नुकसान का मुआवजा देने की अपील की है। बारिश के दौरान कई दरख्त भी उखड़ गए हैं और बिजली की तारें गिर गई हैं। ऐसा रोटी खाने से रोटी खाने ऐसा ढंडोल आया तो ऐसा चाय गया टीन सारा, बरसात की वजह से बहुत बरसात है, नुकसान आया मेरा, चावल मक्की पल्ले सब तबाह हो गए। बच्चे थे, बीवी थी, सब हम खाना खा रहे थे एक साथ। इतनी देर में आंधी तूफान आने की 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ टीन छत भाग गया, दूर चला गया, 200 मीटर दूर चला गया। ऐसे हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो इन्होंने मकान बड़ी स्पीड बहुत आंधी तूफान होया तो मकान पूरा इन्होंने उड़ गया जी। ते और भी ग्राम में काफ़ी लोगों का नुकसान होया, बूटे छूटे टूटे, तो बाकी और भी लोगों ने शर्ट वगैरह। भद्रवाह के जयरोड इलाके में वाक़ई एक मकान बारिश की वजह से मुनहदम हो गया। इस दौरान उत्तम सिंह नामी एक शख्स के घर की दीवार गिर गई। इस हादसे के वक्त घर में 6 अफराद सो रहे थे, ताहम इनमें से सिर्फ एक खातून के हाथ पर चोट लगी और दीगर अफराद महफूज रहे। लोगों ने मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील की। इधर से दीवार पूरी अंदर आ गई सर जी, तो मैं बच्चों को बचाते बचाते मेरी मिसेज को बाजू टूट गया और कमर को भी लगी सर जी। इसको तो मेरी ये गुजारिश है कि रहने के लिए जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा इस टाइम पे। 4 बच्चे हैं मुझे, तो बीवी है और बीवी जख्मी लेके मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास ना जगह है ना कोई कुछ है। तो ये मेरी गुजारिश है कि मेरे से तो मदद हो जाए। अपनी म्यूनसिपैलिटी से भी करेंगे कोशिश कि इनको कुछ न कुछ कंपनसेशन मिले, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से कि अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर इनका कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। सरकार द्वारा किया गया लॉकडाउन सबके हित में था और अब सब 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ شوپیاں کے محکمہ صحت کی جانب سے مختلف گاؤں میں کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کرونا متاثرین کے رابطے میں آئے افراد کے نمونے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اسپتال شوپیاں میں 2 ڈاکٹرز اس وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب آئسولیشن سینٹر کو ڈگری کالج شوپیاں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ نمونے حاصل کرنے کے مرکز کو گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شفٹ کیا گیا۔ TRC پڑپاون کو آئسولیشن سینٹر کے لیے ریزرو رکھا گیا ہے۔ ڈی سی شوپیاں نے اس آئسولیشن سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کووڈ ویلنس سینٹر کا بھی معائنہ کیا۔ کشمیر گلوکار سوسائٹی نے کلچرل اکیڈمی کے سیکرٹری سے اپیل کی ہے کہ فنکاروں کی مدد کی جائے۔ سوسائٹی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں فنکار کافی متاثر ہوئے ہیں۔ کشمیر گلوکار سوسائٹی کلچرل اکیڈمی سے اپیل کرتی ہے کہ مختلف پروگراموں کے لیے جو فنڈ موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فنکاروں تک پہنچایا جائے۔ فاؤنڈیشن اور JKCC کی طرف سے سیکرٹری کلچرل اکیڈمی جناب منیر الاسلام صاحب کو، جن فنکاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہربانی کر کے جو فنکار اس کے مستحق ہے ان کو نظر انداز مت کرے۔ فنکار لوگ اننت ناگ کپوارہ بارہمولہ میں بھی ہے، ان کو اپنی طرف سے مدد کریے۔ ایکسائز کمشنر راجیش کمار شون نے سامبا میں شراب کشید کرنے کے مرکز اور بوٹلنگ پلانٹ کا دورہ کیا۔ 15 میں سے 12 یونٹوں میں کام کاج شروع ہو گیا ہے۔ کمشنر کی ہدایت اور متعلقہ حکام کی اجازت کے بعد پلانٹس میں کام شروع کیا گیا۔ ایکوئر مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اقدام کی ستائش کی۔ ادھمپور میں رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے نریگا اسکیم کے تحت کئی مقامات پر کام دوبارہ شروع کیا ہے۔ کام کے دوران SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اسکیم کے تحت کام کو اس لیے شروع کیا گیا تاکہ ڈیلی ویجز کو کچھ راحت فراہم ہو۔ کسانوں کو اسکیم کے تحت دوہرا فائدہ مل رہا ہے۔ ایک تو کام کے پیسے اور دوسرا جو زمین کسان ٹھیک کر رہے ہیں ان میں جو پیداوار اگے گی اس سے بھی ان کو فائدہ ملے گا۔ کسانوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ راجوری کے
इंद्रवाला गांव के लोगों को पीने के पानी के मसाइल का सामना है। लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि इंतजामिया ने इलाके में 3 साल पहले बोरवेल खुदवाई, डिगवेल तामीर कराई और मेन पाइपलाइन भी बिछाई गई। इसके बावजूद आज भी घरों में नल का कनेक्शन नहीं दिया गया। लोगों ने जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की मांग की। जिसे पानी नदी आते दरिया पर बाल बच्चा माल तराया हम परेशानी में जुल्म हमने सोची सरकार इसकी मोदी साहब की आ रही है, हम गरीबा लोगों की परवश हुई, मारी परवश आई, हमारा पानी बंद कर छड़िया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवंतीपुरा पुलिस ने भी अभी तक अवंतीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों कनाल अराजी पर भांग और खसखस की फसल को तबाह किया है। 1 दर्जन के करीब काश्तकारों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई की निगरानी SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम और SDPO चौधरी एजाज अहमद कर रहे हैं। ट्रैक्टरों के जरिए इस फसल को तबाह किया जा रहा है। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की है। कस्बा पामपुर में दरिया जहलम से रेत निकालने वाले मजदूरों के एक वफ्द ने बीजेपी अक़लियती सेल के स्टेट इंचार्ज अली मोहम्मद भट्ट, लतीफ़ अहमद भट्ट और अवतार सिंह से पितलबाग पामपुर में मुलाकात की। वफ्द ने अपनी मुश्किलात को उजागर किया। वफ्द ने शिकायत की है कि इनको दरिया से कश्तियों के जरिए रेत निकालने के वक्त बिला वजह तंग किया जा रहा है, जो उनके लिए बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पर्ची के उनसे रॉयल्टी के नाम पर 1500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। लीडरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि इस मामले को हल किया जाएगा। कलेक्ट करने के लिए आए कि जो यहाँ के जो रेत निकालने वाले मजदूर हैं, इनके ऊपर मतलब थोड़ा सा जुल्म हो रहा है, तो उसी जुल्म के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं DC पुलवामा और SO पामपुर SSP मोतीपुर से अपील करना चाहता हूँ कि इंसाफ, इनके लिए इंसाफ की मतलब कोई राह ढूंढिए, इनको इंसाफ चाहिए। क्योंकि कुछ लोग गंडे हैं, 4, 5, 6 गंडे हैं जो इनको यहाँ सता रहे हैं, एंडवली पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, न कोई रसीद है न कोई कुछ है। 4, 5 गंडे, उन गुंडों को एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए और भरपूर सजा मिलना चाहिए जो इन गरीब लोगों के साथ, इन गरीब परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डोडा जिले में बीजेपी ने कोरोना वबा के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले मीडिया नुमाइंदों को तहनीत पेश की। एडवोकेट संजय सराफ की क़यादत में बीजेपी लीडरों ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करने वाले 9 सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की। संजय सराफ ने कहा कि जोखिम के बावजूद सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 1 साल की तकमील पर करगिल में बीजेपी दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर बीजेपी अरकान ने आपस में मिठाई तकसीम की। बीजेपी ज़िला सदर ने कहा कि यह हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में सुनहरे दौर का आगाज़ है। उन्होंने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। वली साहब अंजवा ठाटरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इलेक्शन मुनक्किद किया, जिसके ज़रिए नए सदर का इंतखाब हुआ। फिरदौस अहमद खांडे को जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदर चुना गया है। इश्तियाक मलिक को जनरल सेक्रेटरी और शफी चौधरी को चीफ एडवाइज़र चुना गया है। रवि वंशी को एसोसिएशन का नायब सदर चुना गया है। इस मौके पर फिरदौस अहमद खांडे ने कहा कि कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान जिला इंतजामिया ने सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों तक जानकारी पहुँचाते हैं। जहाँ पब्लिक इश्यूज़ को आला हुकाम तक पहुँचाना होगा, वहीं कोविड-19 के दौरान जो बहरान है, इस सिलसिले में लोगों में बेदारी लाना है। पार्टी भी तश्कील दी, जिसके प्रेसिडेंट फिरदौस अहमद खांडे साहब। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वेलकम टू G² K² यानी घर घर की। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस मरतबा कोरोना की वजह से मेला खीर भवानी का मज़ा भी किरकिरा हो गया। तुलमुल समेत दीगर मकामात पर अकीदतमंद नहीं पहुंच सके। पंडितों ने घरों में ही इस त्यौहार को मनाया। कश्मीर में मुसलमान भी हमेशा इस दिन पर पंडितों का वालहाना इस्तकबाल करते थे। इस बीच कई मुसलमानों ने वीडियो पैगाम के जरिए पंडितों को मुबारकबाद दी और कश्मीरियत को जिंदा रखा। आज लड़ी शाह इसी मामले पर खास तबसरा कर रहे हैं। तो आप देखिए लड़ी शाह, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Batau mano gai jat otam, Batau mano gai jat otam, Tolu mulgai yu husluk satakam, Tolu mulgai yu husluk satakam, Batau mano gai jat otam. Musalmanau watan kur mubarak, Musalmanau watan kur mubarak, Pronyesulo lasbeyil jegrak, Pronyesulo lasbeyil jegrak, Pagambu zetuch gaynam, Pagambu zetuch gaynam, Batau mano garizat otam, Tolu mulgai yu husluk satakam, Bacan hing pagam hasbaljan, Bacan hing pagam hasbaljan, Yung mai chisa như cơ sĩ hindishan, Yung mai chisa như cơ sĩ hindishan, Yung mai badla wan ye chuk mosam, Yung mai badla wan ye chuk mosam, Batau mano gai riziat otam, Tolu mulgai yu husluk satakam, Vairasan watu no malaszak, Vairasan watu no malaszak, Maka ni musalmanan titursak, Maka ni musalmanan titursak, Tüm çakhan şirin badam, Tüm çakhan şirin badam, Batau mano gai zet otam,
Tolumulgayu husluk satakam Veliu sari mangau khir bhavani Veliu sari mangau khir bhavani Deya samhav ik wat sari Deya samhav ik wat sari Ak ais chokan karhav marham Ak ais chokan karhav marham Batau mano gali zyat atham Batau mano gali zyat atham Tolumulgayu husluk satakam Tolumulgayu husluk satakam Batau mano gali zyat atham